Morning students, today we are going to discuss the topic pollination. So to understand the pollination, two parts of the flowers are very important, that is your gynoecium and androecium. This is your gynoecium, stigma, style and ovary, and these are your anthers, right? These are the bilobed anthers. These two parts are very important for the process of reproduction and very important before for the pollination process. So, students, what is pollination? It is very easy topic to understand. So, please listen it once, you will get what is actually the pollination is. Now, in pollination, what happened? See, the anthers are deer sized. When the anthers are deer sized, they will release the produce pollens, right? The pollens are coming out. Now they will land on the stigma, right? So the process is called pollination. The process of the transfer of these pollen grains from anther to the stigma is called pollination, right? So pollination is of a various type that we are gonna study about. So pollination is of a two type. First is self pollination. I am writing P for pollination. Next is cross pollination. Cross pollination, right? See, the word is describing itself. What is self pollination and cross pollination? In self pollination, again we have two types, that is autogamy and geitonogamy. क्रॉस pollination में है हमारे पास xenogamy. So these three types of pollination we are going to discuss about. Self pollination is autogamy and geitonogamy. Cross pollination is xenogamy. So look at these structures. These are the two different plants. This is plant 1. This is plant 2. In autogamy, first we are going to discuss about autogamy. In autogamy, the pollen grains of the anthers release and land on the stigma of same flower of the same plant. So this is F1, this is F2. So the flower is same and the plant is same. These type of pollination is called autogamy. एंथर कोई भी एंथर का pollen grain है, चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला land करे, so the process is called as autogamy. Next is geitonogamy. Geitonogamy क्या होता है? It is also a type of a self pollination. In most of the books ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हमारे पास changes है इसमें. क्या होता है? The plant is similar. वही प्लांट है, राइट? तो इसमें क्या होता है, जो पोलन रिलीज होते हैं, इस फ्लावर के पोलन रिलीज होते हैं और दे लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. द प्लांट इज सेम, स्पीशीज इज सेम. तो इन दोनों के केस में रिजल्ट क्या आता है? जो न्यू प्रोजेनी होती है उसके पूरे फीचर्स जो होते हैं पूरे सिमिलर होते हैं दोनों के केस में. लेकिन geitonogamy के केस में हम क्या बोलते हैं कि जेनेटिकली इट इज सिमिलर, लाइक जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बट फंक्शनली अगर देखा जाए तो वो अपने फ्लावर के साथ जो है पॉलिनेशन नहीं करी है, तो फंक्शनली हम इसको बोलेंगे इट इज क्रॉस पॉलिनेशन इन केस ऑफ geitonogamy, राइट? तो इन दोनों के केस में जो जेनेटिक है फीचर्स हैं, दीज आर द सेम. नाउ इन केस ऑफ xenogamy में क्या होता है कि जो पोलन रिलीज होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं. सपोज इस प्लांट के पोलन जो है वो रिलीज करे एंथर ने आफ्टर डियासेशन, तो ये डियासाइज्ड हो जाएगा, तो ये पोलन जो है कहाँ पे लैंड करेगा?
दूसरा फ्लावर है और दूसरा ही प्लांट है, तो यहाँ पे जब ये पोलन ग्रेन आ गए तो ऐसी पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जेनोगैमी। तो इस केस में जो रिजल्टेंट हमारे पास प्रोजेनी आती है उसके फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। सो वेरिएशंस रहती हैं इसके केस में, और इस केस में हमारी वेरिएशंस नहीं होती हैं। तो ज़्यादा जो है मानी जाती है जीनोगैमी जो है, दिस इज़ प्रेफरेबल, अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें वेरिएशंस जो हैं वो आ सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पॉलिनेशन। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है कि अगर पोलन ग्रेन आपके एंड्रोइशियम से गायनोशियम में गए तो ऑब्वियसली उनको कोई एजेंसी है जो लेके जा रही है, उनको शिफ्ट कर रही है। तो वो एजेंसी क्या है, वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज pollinating agents are the agencies which transfer the pollen grain from androecium to gynoecium. So दो तरह की पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं हमारे पास, एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक मीन्स वो एजेंट्स जिनके पास लाइफ होती है, और एबायोटिक जो इनके पास लाइफ नहीं होती है। एबायोटिक में हमारे पास दो रहते हैं, फर्स्ट इज बाय विंड और एयर, ठीक है। ऐसे पॉलिनेशन को हम एनेमोफेली बोलते हैं, एनेमोफेली। सेकेंड होता है बाय वाटर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं एबायोटिक के। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि विंड की बात करें हम, वाटर की बात करें, उनका जो फ्लो होता है वो रेगुलेट नहीं कर सकता कोई। तो इसमें क्या होती है, पॉलिनेशन बाय चांस होती है, 100% गारंटी नहीं होती है कि जो है हमारी पॉलिनेशन हो जाएगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ वाटर और द विंड। नेक्स्ट इज कि इट इज नॉट अ प्रेफरेबल एजेंट्स, इनको नहीं प्रेफर करा जाता, ठीक है। बायोटिक ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि इनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि पॉलिनेशन होएगी। तो हम थोड़ा सा अब एनीमोफैली के बारे में पढ़ लेते हैं। एनीमोफैली में क्या होता है, बाय एयर रहती है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होता है, अगर ये आपका एंथर है और ये आपका स्टिग्मा है, एंथर ने रिलीज करे अपने पॉलन ग्रेन्स, तो जो पॉलन ग्रेन्स है इनका जो वेट होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। तो वी विल से कि दे शुड हैव लाइट वेट, ये तो लाइट वेट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। लाइट वेट होंगे तभी इजिली ये हवा से चलेंगे या पानी से चलेंगे, तो इनका वेट जो होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट ये जो हमारा स्टिग्मा है ये फेदरी होना चाहिए, क्योंकि लाइट वेट है, हो सकता है ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए और साथ हवा के फिर उड़ जाए, इनको यहाँ पे रहना भी है, इसलिए यहाँ पे इनका फेदरी टच रहता है स्टिग्मा का, ताकि वो इस पोलन ग्रेन को यहाँ पे रोक ले और तभी आगे का प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू हो सकेगा, ठीक है। ये है आपका एनीमोफिली। उसके बाद हाइड्रोफिली में आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, वो देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है वेलिस्नेरिया का। ये प्लांट है एक जो पानी में रहता है। अब देख लेते हैं क्या होता है, किस तरह से इसमें हाइड्रोफिली होती है, पानी के थ्रू जो है पॉलिनेशन होती है। जैसे ये आपका वाटर है, राइट, तो जो वेलिस्नेरिया है वो पानी के अंदर होता है, ठीक है। सॉरी, ये इसका स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये एंथ। इसके केस में क्या होता है, क्योंकि इसने पॉलिनेशन करनी होती है, तो जो इसका एंथर होता है वो धीरे धीरे कई बार क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है, ये एयर से एक्सपोज हो जाता है और अपने पोलन ग्रेन्स जो है पानी पे छोड़ देता है। क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, ये यहाँ पे तैरने लग पड़ते हैं, और जब ये तैरने लग पड़ते हैं थाउजेंड्स ऑफ द पोलन ग्रेन को छोड़ता है, क्योंकि इसको पता है कि चांसेस बहुत कम है पॉलिनेशन होने के, आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होएगी, इसको अपनी स्पीशीज़ रेडी करने हैं, इसलिए थाउजेंड्स के नंबर्स में जो है अपने पॉलिनेशन छोड़ता है। और इन जो पोलन ग्रेन्स होता है इनमें म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जो है ये सिंक नहीं करते, ऊपर फ्लॉट करते रहते हैं। उसके बाद ये जो है किसी और स्पीशीज़ पे जाके अटैच हो जाते हैं, उसके स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं, और इस तरह से पॉलिनेशन करते हैं इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया।
राइट। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दी गई है सी ग्रीन की। सी ग्रीन के केस में क्या होता है, सी ग्रीन जो है, अब उसके तो ऊपर नहीं आते हैं पॉलन ग्रेन्स। सी ग्रीन जो है वो अंडर वाटर, क्योंकि सी में रहता है, अंडर सी रहने वाला स्पीशीज है एक तरह का। तो इसके केस में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट की तरह होता है। इसके जो पॉलन ग्रेन वो होती है, फिलामेंट होते हैं, वो बिल्कुल रिबन की तरह होते हैं। और जब ये रिबन की तरह होते हैं, जैसे पानी का बहाव आता है, पानी की जिस डायरेक्शन में फ्लो आती है उसी तरह से ये घूमने लग पड़ते हैं और अपने पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स फिर से अपना स्टिग्मा ढूंढ लेता है और फिर जाके पॉलिनेशन कर लेता है। तो ये आपके एबायोटिक और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है, अपने बायोटिक एजेंट्स पढ़ने हैं कौन कौन से होते हैं, और उन एजेंट्स के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर्स नाम दिए गए हैं, ठीक है। उन एजेंट्स के बेसिस पे आपको नेमिंग देख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिसकी अगर कोई एजेंट इंसेक्ट है तो उसको हम एंटोमोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं, राइट। जैसे इंसेक्ट्स में आपके बीज आ गए या बटरफ्लाई आ गए, इस तरह से आपको काफ़ी जितना भी एज मच एज यू कैन लर्न अबाउट, उतनी तरह के अब बायोटिक में जो है आपने एजेंट्स याद कर ले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एज।